He was responding, and please don't take as an offense. I'm just quoting what he said there. And he. Yes, no crosstalk. There's no such you can just doesn't refer. need to Yeah, be whatever. authenticated. How can an army? I'm not commenting on another house. I'm just quoting. Sir, I was not talking derogatory or out of Means no disrespect. crosstalk. So you are actually jumping the gun. This is the point. Please, come on. मेरे बहुत पुराने साथी हैं मैं जानता हूँ आपके पुराने मित्र और हैं। और Please, और पुराने साथियों की आदत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। माननीय प्रफुल्ल जी, let's come back. यहाँ आने के बाद आप बहुत जल्दबाजी में मत बोलिए। Please, यहाँ आने के बाद please, not fair to him. Not छोड़िए fair. ना 22 तारीख की घटना है, Please, not fair to him. वो Not 22 fair की to रात him. को लौटे, Please. 23 को CCS हुई, ये हमने अखबारों में पढ़ा। Let me start by expressing my deepest condolences on the barbaric terrorist attack which took place in Pahalgam and the loss of human lives. 25 Indian nationals and 1 Nepali national fell prey to terrorist bullets. And what was even more saddening and unacceptable, that terrorist attacks have happened in the past in our country and maybe many parts of the world. But for the first time, at least in our country, we saw that people being identified by religion and being shot in cold blood in front of their wives, children, or the other extended family. And that actually shook the conscience of the nation. It was not just about the government reacting to a particular incident. I think the entire nation, as one, stood in solidarity and also in anger. And that was reflected in the mood. And I'm happy that all political parties associated with the mood of the nation and in a way supported the government for any action it would take in future. I attended all party meetings and I'm happy that not a single voice of discord was noticed at that time. And I'm also very happy that the government not only responded decisively, responded with, I would say, its full power, venom, but also in a way took into account a lot of other factors which are necessary to keep the well-being of our nation, because our government is concerned about the well-being of our nation, our citizens, took a measured response in giving a reply, a befitting reply to the terrorist attack. And I must say that we all have to salute our armed forces in every single way how they took up the challenge and gave a befitting reply. There are different versions, different voices. Some are saying that why the attack, I was hearing the leader of the opposition in Lok Sabha just a while ago, before I say about an hour and a half ago. He was responding, and please don't take as an offense. I'm just quoting what he said there. And I'm just quoting what came on television. Now, you don't want me to authenticate Sansad TV, Please, no crosstalk. There's no Sansad TV. You can just doesn't refer. need to be Whatever. authenticated. I was watching, I said, on the television. And the leader of opposition, I'm sure he spoke well. He spoke also in the national interest. I'm not trying to disagree with his thought process. But said that, how can an army... How can he comment on the house? I'm not commenting on another house. I'm just quoting. This has never been done before. Let us, honorable member Praful ji, Mani Praful ji, may I only request you to just make the statement without any references. I will keep to the prescribed norms. However, I would like to just tell them that I will keep to the prescribed norms, but I would like to tell you that I was not talking derogatory or out of disrespect. So you are actually jumping the gun. You would have probably been happy to hear what I was going to say.
But let's keep it at that. Yeah, just leave it at that. You're very impatient, my friend Jairam. Mani Praful ji, let's. साहब इनको This मैं is the बहुत point. साल, Please, come on. मेरे बहुत पुराने साथी हैं मैं जानता हूँ आपके पुराने मित्र हैं. Please. और मैं हमारे पुरानी साथियों, मेरे पुराने साथियों की आदत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. Mani Praful ji, let's come back on it. साहब Please. साहब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं Please. है. Topic. साहब इस देश में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं. कितनों का उत्तर हम दे पाए, कितनों के बारे में हम लोग कोई हमारे लोगों को न्याय दे पाए. मेरे मित्र संजय झा भी मुंबई के 26/11 के अटैक के बारे में एक उल्लेख कर रहे थे. मुंबई का मैं भी हूं. 26/11 हुआ तब हम सरकार में थे. चिदम्बरम जी भी थे, जयराम जी भी थे, और भी रेणुका जी भी थी. और उस टाइम पे जो मुंबई में जो घटना घटी वो शायद प्लीज नो बहुत सारी नो क्रॉस टॉक प्लीज. बहुत सारी क्षति हमारे देश के कितने नागरिकों को मारा गया. केवल उतना ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश में जो अमन चैन शांति को भंग करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी. अगर हम सरकार में रहते हुए भी हमने देखा, हमें समझाया भी गया कि भाई देखिए इसके बारे में उत्तर उतना ही दिया जा सकता है जो हमारे से संभव हो. और हमने देखा कि अल्टीमेटली डॉसियर देने के अलावा कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पाकिस्तान के कुछ नागरिक इसमें शामिल है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए. मैं ये उस टाइम पे दोष नहीं दे रहा हूं, ये कई बार उत्तेजित हो जाते हैं हमारे साथी. मैं ये कहना चाहता हूं कि तब की जो परिस्थिति थी और आज जब यहां पर पहलगाम में ये घटना घटी तो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया थे, रातों रात वो लौट आए, वहां की जो स्टेट विजिट थी उसको कट करते हुए. और यहां आने के बाद आप बहुत जल्दबाजी में मत बोलिए प्लीज. यहां आने के बाद प्लीज नॉट फेयर टू इट. छोड़िए ना, 22 तारीख की घटना है, प्लीज नॉट फेयर टू इट. वो 22 की रात को लौटे, प्लीज. 23 को सीसीएस हुई. ये हमने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा. सीसीएस के निर्णय के बाद 24 तारीख को वो जब बिहार गए तब वहां से उन्होंने देश को और दुनिया को संदेश देने का काम किया. उन्होंने कोई चुनावी बात नहीं कही. हमने भी गृह मंत्री जी का और बाकी लोगों के भाषण जो सुने उसमें उन्होंने जो कहा उसके आधार पर हम कह रहे हैं. लेकिन एक बात निश्चित है कि सरकार ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हमें इसका जवाब देना होगा और जवाब समय अनुसार देना होगा. ऐसा नहीं कि भाई आज हुआ 2 साल 5 साल तक हम रुके हैं. तुरंत 10-15 दिन के भीतर ये इसका जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हुई. और जो हम लोगों ने वहां पर 9 टेररिस्ट कैंप्स को हम लोगों ने रातों रात डिस्ट्रॉय किया. 22 मिनटों का जो एक चंद छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुआ, उससे हर भारतीय के मन में एक गर्व महसूस हुआ कि आज हमारी सरकार हमारा रक्षण करने के लिए सक्षम है. और इसीलिए हमें देखिए, किसी को भी राजनीति करना होगा तो होते ही रहेगी. लेकिन इस चीज के इस मुद्दे के मामले पर हम लोगों ने, जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन में भी बाकी कई वक्ताओं ने कहा कि हमने एकता दिखाई, हमने दुनिया में एक मुंह से, एक जबान से हम लोगों ने बात की, देश को कहीं हम लोगों ने लेट डाउन नहीं किया. तो आज ऑपरेशन सिंदूर की जब बात होती है, हमारे सेना के शौर्य की बात होती है, जो आज टेक्नोलॉजी, आज देखिए विश्व में अब लड़ाइयां केवल टैंक्स की या यहां से हमारी बंदूकों लेकर हमारी सेना इस पार से उस पार गई, वो अब जमाना करीब खत्म होते आए. आज हमने देखा ईरान और इजराइल की लड़ाई, कहां ईरान कहां इजराइल, कॉमन बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन के अटैक हो रहे थे. हम लोगों ने पहले दिन
सीमा न क्रॉस करते हुए हमारी ही भूमि से वहां के 9 टेररिस्ट कैंप्स को 100 150 किलोमीटर दूर हम लोगों ने नेस्त नाबूद किया। एब्सोल्यूट प्रिसिशन अटैक, जिस मकान पर, इमारत पर बम गिराना था वहीं पर बम गिरा, वहीं के लोगों को मारने का काम किया, वहीं के टेररिस्ट को मारने का काम किया। ये हमारे भारतीय इंटेलिजेंस और हमारी सेना के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है उसकी मिसाल थी। और उसके बाद भी हम लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मेजर रिस्पॉन्स क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ये मैं अब बाजू के बगल के हाउस की बात नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न सवालिया उठा लिए। जब हम लोगों ने उन लोगों का रिस्पॉन्स जो आया, और रिस्पॉन्स क्या आया कि 2 दिन लगातार रातों रात उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए। आप लोगों को भी मालूम है, टीवी पे भी हम लोगों ने देखा, एक मिसाइल हरियाणा में दिल्ली पे आते हुए हमारी सेना ने उसको गिराया था। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने तरफ से शुरुआत कर दी। उसका उत्तर हम लोगों ने करारा जवाब पाकिस्तान के 11 उनके मिलिट्री एयरफील्ड, एयर बेसिस को नष्ट करने का काम किया। और उतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की यहां पर बहुत लोगों ने चर्चा की। हमें मालूम है कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स कहां पर रखे थे, और इसीलिए ठीक न्यूक्लियर एसेट के बगल में जो एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर हमारी मिसाइल वहां पर जाकर अटैक किया हम लोगों ने, ये इशारा करने के लिए कि हमें यहां तक पहुंचना आता है। कल अगर आपने और कुछ ज्यादा हमको धमकाने की कोशिश की तो हम आपके न्यूक्लियर एसेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। ये हमारी सेना ने ये करके दिखाया। और इसके बाद भी सब लोगों को लगता है कि हम लोगों ने ढीली बात कर दी, हम लोगों ने सीज फायर कर दिया, किसी के दबाव में आकर सीज फायर किया। अरे जो लोगों जिसकी बात आप करते हो बार बार, that somebody called and therefore there was a ceasefire, that person is talking morning something, evening something, and the night something else. And he is talking about not India but about many other countries. I don't want to name anybody because after all, there is a protocol about our relationships with countries. But at the same time, when the External Affairs Minister makes a very candid statement here on the floor of the House, that this was the day when the two heads of state spoke, and the next conversation was after so many days. There was no conversation during Operation Sindoor or otherwise. Why should we in Parliament or as a nation disbelieve our own government or our own External Affairs Minister? It is very shocking, very surprising, and therefore I would say that we have to, I'll be concluding, we have to take all these factors into account. We can also engage in a war. It's not so difficult. But the point is, India has more to lose or they have to lose. That country, there is nothing left. It is, as my friend said, nobody recognizes Pakistan as an economic state at all. It is a state which is living off the IMF dole. It is living off the World Bank money. It is living off the Asian Development Bank money. वहां पाकिस्तान की हालत जो है अर्थव्यवस्था की, आप लोगों को मालूम है, वहां पर खाने पीने के भी वांदे पड़े हैं। लेकिन आज हमारा भारत एक सशक्त भारत, मोदी जी के नेतृत्व में चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। तो आज भारत को जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा कि लड़ाई करके हमारा नुकसान हो रहा है या केवल उनका नुकसान हो रहा है। हमें हमारा भी देखना है। और आज के आधुनिक वॉरफेयर में जिस तरह से देश और दुनिया बदल रही है, हम लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करते हुए हमारे देश की रक्षा करना होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर कोई हमारे देश में आतंक फैलाएगा तो हम इसको अब आगे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको नष्ट करके खत्म करके ही रहेंगे। ये आज एक बहुत बड़ा संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। और अंत में जो गृह मंत्री जी ने हर ऑपरेशन महादेव के बारे में भी जानकारी दी है, ऑपरेशन महादेव, जो लोग शंका कर रहे थे कि जो आए आतंकवादी वो मार के तो चले गए, अभी तक सरकार क्या सोई है, आज उसका भी पूरा फैसला हो चुका है। पूरी सच्चाई हमारे देश के सामने आ चुकी है। ये हम सब लोगों के लिए फख्र की बात होनी चाहिए। आपको
और मैं सभी सदन के मेरे साथियों को निवेदन करूंगा कि राजनीति की जगह हमारे पास बहुत है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में और ये पूरी जो घटना हुई है Thank you, इसके sir. बारे में हम एक मुख से और हमारे जवानों के शौर्य के बारे में हम सब लोग सलाम करते हुए Thank अपने you. स्थान को मिलते हैं। Thank you. Honorable Shri Milind. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।